I appeal to all the voters of West Bengal, पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग यह आह्वान करता है कि आगामी चुनाव हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में होंगे और जो ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है उसमें पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता मतदान करने अवश्य आएंगे। The political battle in West Bengal is heating up months before the assembly elections. And now the confrontation has reached the doors of Parliament. The All India Trinamool Congress has begun the process of moving a motion to remove the Chief Election Commissioner of India. The party has started collecting signatures from members of Parliament in both houses to initiate proceedings against Gyanesh Kumar. The move comes amid a sharp political clash over the Special Intensive Revision or SIR of voter rolls in West Bengal. Sources say the Trinamool Congress has already drafted a detailed notice running nearly 10 pages. The document accuses the Chief Election Commissioner of serious irregularities during the voter roll revision process. According to party leaders, the main charge revolves around alleged fraud in the handling of the SIR exercise. The party now wants support from opposition MPs to push the motion forward in Parliament. Senior TMC leader Swagata Roy confirmed that the party is actively seeking signatures from MPs of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. He said the process is underway and the notice could be submitted within the next few days once enough support is gathered. हमें मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। लगा दिया है। हाँ है तो LPG का दाम 60 रुपया बढ़ाया गया, एयरलाइंस भी बढ़ा रहे हैं। ये तो केंद्रीय सरकार का नाकामयाबी है। उनको पहले से कदम उठाना चाहिए था, सब्सिडी देना चाहिए था, आम जनता को असुविधा ना हो, लेकिन वो तो नहीं दे पाए। दादा, आपकी पार्टी की तरफ से इम्पीचमेंट मोशन मूव किया जा रहा है सीसी ज्ञानेश कुमार का। एक ये भी कहा गया है कि जो सवाल उठा है कि बहुत सारे जो सवाल जो टीएमसी ने किए थे उसका जवाब भी नहीं मिला है, तो इम्पीचमेंट मोशन को लेकर के समर्थन है आप लोगों के पास? हाँ, हम तो समर्थन के लिए सब लोग को साइन करा रहे हैं। 2-1 दिन में ये पक्का हो जाएगा कब हम जमा करेंगे। जब वो कोलकाता थे, जब ज्ञानेश कुमार कल कोलकाता में थे, परसों उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी रहा वहाँ पे। कलकत्ता में एयरपोर्ट में और कालीघाट मंदिर में काली झंडा दिखाया गया। हमारा प्रोटेस्ट हम लॉन्च किए हैं। दादा, गवर्नर को चेंज करने को लेकर के भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि अचानक गवर्नर क्यों चेंज किया गया? हाँ, तमिलनाडु के लोग तो बहुत ही अनहैप्पी थे गवर्नर को लेकर, फिर यही गवर्नर को हम पर लाद दिया गया। क्या करेंगे? जा रहा है जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। सही है, 58 lakh voters are on the adjudication list. It's a big number. तो ये तो इलेक्शन कमीशन का गलती है। ममता बनर्जी जो बोली है ठीक बोली है। देश के कुछ राज्यों में तेल की संकट हो गया है, ये गैस का, मुंबई हो, बेंगलोर हो, इन सबको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो सरकार को देखना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर। दादा, बहुत ही खराब हालत है। सीईसी को हटाने के लिए इम्पीचमेंट नोटिस लाने का फैसला है, आजकल के अंदर ये होगा। आप लोगों में विपक्षी दलों में इस पर चर्चा हुई है? हाँ, चर्चा हुई है, कल डिटेल में चर्चा हुई, कल हुआ था। क्या फैसला तय हुआ है? कि मूव करेंगे राज्यसभा से वो इम्पीचमेंट नोटिस। Under parliamentary rules, a motion seeking the removal of the Chief Election Commissioner requires the backing of at least 100 MPs in the Lok Sabha and 50 MPs in the Rajya Sabha just to introduce the notice. Once the notice is admitted, the motion must be supported by a special majority in both houses of Parliament. Only then can it move forward for the approval of the President of India. Such motions are extremely rare and can only be brought on the grounds of proven misbehavior or incapacity. The political confrontation intensified after the Chief Election Commissioner recently completed a 3-day visit to Kolkata to review election preparedness.
During that visit, a delegation of Trinamool Congress leaders met him. But the meeting itself soon turned controversial. TMC leaders accused the Election Commission officials of behaving arrogantly during the interaction. You have called us today. So everything he says is with the Supreme Court. Then everything is with the Supreme Court, then why do you call us here? And the way you are behaving with a woman today, with a Mahila today, who has come as a representative of a recognized party, that you are actually, we know that this is the reason why you have targeted Mahilas, and Mahilas are being outlisted. Why? Was he arrogant? Obviously, he was too much arrogant. He is always too much arrogant. He himself speaks, he doesn't allow anyone to speak. So he is speaking. He will be speaking. Then why call us? Did he allow him to speak? Did he allow him? एरोगेंस में यही तो बात बोले जो कि अभी हम बोल चुके हैं कि ये हमको बोले कि आप शाउट मत कीजिए। अरे हम लोग तो शाउट करने के लिए नहीं गए। अगर हमारा गला का जोर है तो हम जोर से ही बोलेंगे। आपको पसंद नहीं आने से नहीं पसंद आए वो ठीक है, लेकिन जोर से ही बोलेंगे। हम तो आपको कहीं पर अपमान नहीं किए हैं, हम हमारे केस बताने के लिए आए हैं। और हम लोग बोले हैं कि क्या हुआ है, 24 साल में जो फीमेल मेल रेशियो था वो इस बार कम हो गया है। ये हो सकता है? तो आप टारगेट कर रहे हैं महिलाओं को, तो वो तो एकदम प्री कंसीव माइंड लेके आए हैं, किसी के हिसाब से चल रहे हैं। सो वो खुद बोलते हैं और किसी को बोलने तो नहीं देते। ये नाम के वास्ते फुल बेंच है, लेकिन बिफूल्ड हो रहा है हमारे यहाँ के जो राज्य के लोग। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has also stepped up her attack on the Election Commission. She questioned the voter list revision process and claimed that millions of names had been placed under adjudication. বেচারা ভ্যানিশ কুমার, তার জন্য আমার খারাপ লাগে। আমি কোনো চেয়ারকে অপমান করছি না। ভ্যানিশ কথাটা আমরা ইউজ করি কারণ কালো লোকেদের ওয়াশিং মেশিনে ভ্যানিশ করে দিয়ে হোয়াইট করে দেওয়া হয়, আমি সেই জন্য ইউজ করছি। স্ট্রং ভ্যানিশিং পাউডার। আজকেও আমি শুনলাম অফিসারদের মিটিং করে বহুত থ্রেট করা হয়েছে। শুধু এখন অ্যাকশন নেবে তা নয়, যদি ওনার কথা না শোনে। মানে ভ্যানিশিং পাউডার মে মাসের পরেও নাকি উনি অ্যাকশন নেবেন। আমি বলি সাহস থাকা ভালো, কিন্তু দুঃসাহস থাকা ভালো না। মনে রাখবেন, মে মাসের পরে আপনি থাকবেন তো আপনার চেয়ারে, আগে সেটা ঠিক করুন, তারপরে বাংলার অফিসারদের থ্রেট করবেন, বাংলার মানুষকে থ্রেট করবেন। The ruling party at the centre has strongly rejected these allegations. BJP leaders say the opposition is attempting to undermine constitutional institutions whenever electoral outcomes appear uncertain. Union Minister Chirag Paswan criticized the move and said repeatedly questioning institutions such as the Election Commission weakens democratic trust. स्पीकर पे आपको विश्वास नहीं, चुनाव आयोग पे आपको विश्वास नहीं, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं पे आपको विश्वास नहीं। किस अराजकता की ओर विपक्ष देश को लेके जाना चाह रहा है, मेरी समझ के परे। और क्यों इतनी हताशा, इतनी निराशा किस बात की? आप दिक्कत ये है कि जब तक मैंने सदन में भी आज यही बोला कि आप आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। और आरोप लगाना मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि भैया क्या कारण है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप चुनाव हारते जाते हैं। जनता का धीरे 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 आपके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। कुछ तो कारण होगा। इसका कारण सिर्फ ये संस्थाएं जिम्मेदार नहीं हो सकती। और आप हर अथॉरिटी को आप क्वेश्चन करते हैं। सदन के अंदर आपको चेयर स्वीकार्य नहीं है, चुनाव में आपको चुनाव आयोग स्वीकार नहीं है, जांच के लिए आपको जांच एजेंसी स्वीकार्य नहीं है। तो क्या करे? सारी संस्थाओं को बंद कर कर सिर्फ विपक्ष की संस्था को मान्यता दी जाए? नहीं संभव है ना। ऐसे में आपको इन संस्थाओं का सम्मान करना होगा। और अगर आप हर किसी को अविश्वास की नजर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अविश्वास
जनता का आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, जो विपक्ष के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आत्ममंथन नहीं करेंगे तो पूर्ण समाप्ति की ओर जाएंगे। देखिए, ऑपोजिशन के पास कोई काम नहीं है। बजट पेश हुई, राज्य में वो जाना है, वो टीएमसी के राज्य में भी जाएगा, कांग्रेस के राज्य में, बीजेपी के राज्य में भी जाएगा। बजट एलोकेशन होता है, बजट होने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट से वो एलोकेशन होती है, वो संसद में आते हैं। इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, कहाँ कमी है, कब वो ना करके स्पीकर के ऊपर इम्पीचमेंट लाएंगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लाएंगे। माने देश के जितने भी संवैधानिक संस्था है, इनके ऊपर इनका विश्वास नहीं है, इसलिए यही काम कर रहे हैं। और ये अच्छा है, जनता देख रहा है जो हमने किस लिए भेजा और क्या कर रहा है। तो ये विनाश काल में विपरीत बुद्धि जो होता है वही हुआ है। बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का विदाई लोगों ने तय करके रख दिया है और वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को समझ में आ गई है और बिकॉज ऑफ दैट वो धरने में बैठी है। धरना में लोग भी नहीं जा रहा है। वो सोचा था दुकान में बहुत आए, कुछ नहीं आ रहा है, खाली है और एक एक दिन एक एक बात बोल रहा है, कोई बात का असर नहीं है। जनता ने देख लिया है। पहले तो आए थे सुप्रीम कोर्ट में, वकील बन के जा रहा हूँ, पूरा उद्धार कर लूंगी, ऐसे गए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे यार उनको समझा दिया। अब उनको समझ में नहीं आता तो इलेक्शन कमीशन के पीछे लगे हैं। तो ऐसा ही है। और जाने के समय जो होता है ना, जाने के समय सबका ऐसा होता है, तो इनका भी हुआ है। इसीलिए आप लोग और मैं भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने 14-15 साल पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के नाते काम जो भी अच्छा बुरा किया, मैं इस काम के लिए उनको शुभकामना एडवांस दे देता हूँ। विदाई उनका हो गया है और बस इलेक्शन का डेट घोषणा करने के बाद जनता अपना राय दे देगी। As the West Bengal election battle approaches, the dispute over voter rolls and institutional credibility has now escalated into a national political confrontation. With the Trinamool Congress pushing ahead with its plan for a parliamentary motion, the coming weeks could see an intense showdown between the opposition and the ruling alliance over the functioning of India's electoral watchdog.